तो क्लास हम लोग बात कर रहे थे कांटेक्ट फोर्सेस की, और हम लोग अब तक कांटेक्ट फोर्सेस में फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं. And we have studied normal reaction force. It is called normal reaction because it is normal to the surface which is applied, which is applying it. And then we were discussing that force is a vector quantity, and vector quantity can be broken, can be resolved in two parts with its magnitude and direction. We have gone through that concept. Do you remember that a vector quantity can be resolved in two parts? And using this case, after getting resolution of vector, we discussed a case where a surface is horizontal, then normal reaction is equal to weight of the object. When surface is inclined at an angle theta, then normal reaction is actually reaction of mg cos theta, not mg as a whole. And mg sin theta is that force which will try to pull the object down. And then we discussed that if the block is not sliding down, that means some other force is there in the picture, which is frictional force. Then we discussed that if we increase the inclination of this surface, then theta increases, so sin theta increases, so mg sin theta increases. And there is a situation when mg sin theta will overcome the frictional force and this block will start sliding. We have actually seen this situation also. What was that situation? That this is, see, the object is balanced, and then I increase the inclination. So at a particular angle, this object slips down because of mg sin theta. And mg sin theta actually defeats the frictional force, overcomes the friction force. I am not giving you details of frictional force because frictional force is also a magical force. It also has such a qualities, such a properties that this force creates magics. So I am not going deep into that because then the topic we will miss the topic what we are doing, that is contact forces. So then do you remember I told you that the second law of Newton says that force is equal to m into a. Remember it? Then I told you that don't say it force only. Say net force. Net force is acting. Net force acting is equal to m into a, right? Net force means resultant force, and in the last case which we did, that last case, it was mg sin theta which is pulling the block down and friction which is trying to keep the block at rest. The net force will be difference of two, mg sin theta minus f. Substitute this value in place of net force. So net force will become equal to m into a. This is when block is sliding. Now come to the third contact force, that is tension. Feel it also, right? Feel it also. Let me see the example. I am taking an object. This object is suspended with help of this red string, right? Now think, if you take this kind of object, take some heavy object and suspend it with help of some string, and feel that this object through the string is exerting a force on your fingers. Do this experiment by yourself. This object through this string is exerting a force on your finger. You can feel that force. So now listen to the story. Object is pulling
the string down because of its weight. Or we can say earth is pulling this object down. In that response, that object is pulling the string down. Now what is third law of Newton? Third law of Newton says, if this object pulls the string down, then a string will react to it and a string will pull this object up, right? Now gravity wants this object to move down, but in reaction to the force of this object, this string pulls the object up. So actually on this object two forces are acting. Let me see this in the diagram. On this object two forces are acting. See, this is a string and this is object. This object is pulled by gravity, so its weight or force of gravity is pulling it down, while the string in reaction is pulling the object up. Since this object is pulling down, so can you feel that this string is straightened? अगर मैं ये ऑब्जेक्ट हटा लूँ तो ये स्ट्रिंग लूज नहीं हो जाएगी? इस ऑब्जेक्ट ने स्ट्रिंग को नीचे खींचा, उसकी वजह से स्ट्रिंग में रिएक्शन पैदा हुआ, वो रिएक्शन इस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है और इसे ग्रेविटी के डायरेक्शन में नीचे भागने नहीं दे रहा है. ये जो फोर्स इस स्ट्रिंग में डेवलप हुआ, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स. दिस टेंशन फोर्स is a reaction of force of gravity on this object. I am repeating the sentence. This object is pulling the string down because of its weight. So, string is pulling the object up as a reaction. This force which is developed along the length of the string is called tension force. क्या बात समझ में आई? ये पूरा डिस्कशन मैंने अपने नोट्स में लिखा भी है कि आप उसको लिख कर अपने पास हमेशा के लिए रख सको कि जहाँ जब मन है आपका आप रिवाइज कर सको. अब दिस फोर्स डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन. ओके, लेट वी सी व्हाट आर द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टेंशन. दिस टेंशन फोर्स इज ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. लगा कौन रहा है? स्ट्रिंग. एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? किस पे लग रहा है? ऑब्जेक्ट पर. तो देखो, टेंशन फोर्स की टेल ऑब्जेक्ट पर लगाई है मैंने और टेंशन फोर्स वेक्टर का हेड ऊपर की ओर अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. टेंशन फोर्स हमेशा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है. ठीक, दूसरे पॉइंट पर आ जाओ. टेंशन फोर्स which is represented by the arrow is always away from the object. बच्चे टेंशन फोर्स को, और 11th में तो आपको ये सारी बेसिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. बच्चे टेंशन फोर्स को ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते. टेंशन फोर्स स्ट्रिंग के अलॉन्ग लग रहा है. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं. टेंशन फोर्स स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग लगता है and it is acting on the object. So tail of the force vector is on the object, right? And gravity's pull is at the center of gravity of the object, vertically downward. And if this object, like in my case, see, in my case this object is at rest. Yes or no? नीचे भाग रहा है ऑब्जेक्ट? नहीं. ऊपर चल रहा है? नहीं. इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, 2, 4, 6, सब कैसे हैं? बैलेंस्ड. और उन सब का रिजल्टेंट क्या हो रहा है? 0. तो अब अपने केस को देखो भाई.
कि भाई इस पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 2, और उन दोनों फोर्सेस को बैलेंस हो रहे हैं दोनों फोर्सेस, इसीलिए तो ये ऑब्जेक्ट ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर. सो फॉर दिस ऑब्जेक्ट एज इट इज एट रेस्ट, the tension force is exactly equal to weight of the object. See, in every case we are having a mathematical equation which is completely explaining the situation of the object, no matter whether the object is at rest or is moving. Are you getting this thing which now you are learning, that for every situation of the object we are analyzing the forces, and then we are having an equation. We are having an equation. Then again I am repeating that this tension force is along the length of the rope. So all these points will help you to solve a conceptual problem or numerical when it is case of tension force. Now come to next force, that is spring force. This is again an interesting case. देखो, let me take an example when a spring is suspended with a rigid support. Rigid support मतलब जो support इस पर अगर फोर्स लगे तो ये सपोर्ट नीचे ना आने लगे. हाँ, रिजिड सपोर्ट है. स्प्रिंग इज सस्पेंडेड विद दिस रिजिड सपोर्ट. दिस लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, it is called natural length. This length of the spring is called natural length. When no other object is suspended with the spring has its original length, then that is called natural length. Then see what happened. I suspended a block with the spring. Now what do you think what will happen? Gravity will pull the block down and block in turn will pull the spring down. Yes or no? Block due to its weight will pull the spring down. अब अगर ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है और ये स्प्रिंग को नीचे खींच रहा है, तो स्प्रिंग को लंबा होते चले जाना चाहिए था. लेकिन अगर तुम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो तो ब्लॉक एक लिमिट तक नीचे आकर एक लिमिट तक स्प्रिंग को नीचे खींचकर रुक जाता है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि जो ग्रेविटी ब्लॉक को नीचे खींच रही थी उसके साथ लड़ने वाला कोई फोर्स, उसके साथ पंगा लेने वाला कोई फोर्स आ गया. गेटिंग द पॉइंट? और वो फोर्स कौन था? अगर तुम इस सिचुएशन को एनालाइज करो तो डेफिनेटली वो फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स के उल्टा होगा, ऊपर की ओर होगा. तभी तो वो इसको जो नीचे पुल कर रहा था उसको बैलेंस करके रोक पाएगा. और ये फोर्स लगा कौन सकता है? स्प्रिंग अगर इसके कांटेक्ट में है तो स्प्रिंग ही तो लगा सकता है. तो बस हम कंक्लूजन पे पहुंच गए. क्या? When spring is stretched or compressed, when length of the spring is increased from its natural length or it is compressed from its natural length, then there is a force which develops inside the spring. This force tries to oppose the stretch or compression which is changing the natural length. This force tries to restore the original length of the spring. That is why it is called restoring force of the spring. And this force
is called spring force. Getting the point? पीछे की डायनेमिक समझ में आई कि क्या हुआ? ब्लॉक ने स्प्रिंग को नीचे खींचा, स्प्रिंग की लेंथ चेंज हुई तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया। वो फोर्स स्प्रिंग के एक्सटेंशन को अपोज कर रहा है, ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, और उस फोर्स में एक बड़ी खास बात है। क्या? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन। देखो, नेचुरल लेंथ इतनी थी, अगर स्प्रिंग इतनी लंबी हुई और तब ब्लॉक जाके रुक गया, तो ये जो डिफरेंस है ना लेंथ का, इतना, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, वो क्या कहलाती है? स्प्रिंग की स्ट्रेच्ड लेंथ और एक्सटेंशन। एंड स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, मतलब जितना लंबा खींचोगे रिस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा फोर्स है? जैसे जैसे स्प्रिंग लंबी होती जाएगी एक्स बढ़ता जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि ये ग्रेविटी को बैलेंस कर लेगा। जब स्प्रिंग बिल्कुल लंबी नहीं थी तो ये फोर्स ज़ीरो था। अगर x ज़ीरो है तो स्प्रिंग फोर्स भी ज़ीरो है। जैसे जैसे x बढ़ने लगा, kx बढ़ने लगा, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ने लगा, और एक समय ऐसा आया जब इसने ऑब्जेक्ट के वेट को बराबर कर लिया, उसको बैलेंस कर लिया, और ये जो ब्लॉक है वो नीचे जाना रुक गया। क्यों? क्योंकि F of a spring is equal to mg, और we can say kx is equal to mg। तो ये कहानी है स्प्रिंग फोर्स की, और स्प्रिंग फोर्स kx के बराबर होता है, where this k is called force constant. Spring force is equal to kx. Spring force is equal to kx. X is extension or compression, and this k is spring constant, right? तो स्प्रिंग फोर्स की ये जो वैल्यू है, ये भी अगर आपको याद रहेगी तो आपको NTSC में बहुत काम आएगी, ठीक है? वन केस वी स्टडीड वेयर द स्प्रिंग इज इलोंगेटेड, नीचे लटका दिया था हमने ऑब्जेक्ट, और अब ये देखो स्प्रिंग को हमने ऐसे फ्लोर पे इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, फिक्स किया, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया। देखो अब स्प्रिंग खींचेगी कि दबेगी? ऑफ कोर्स दबेगी। वेट की वजह से ब्लॉक स्प्रिंग को नीचे दबाएगा, और अगर ब्लॉक स्प्रिंग को नीचे दबाएगा बेटा, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा, जो भी फोर्स इसकी लेंथ को चेंज करेगा उसके ऑपोजिट पैदा होगा। जहाँ पर खींच रहा था ऑब्जेक्ट वहाँ पर ऊपर की ओर, और जहाँ पर दबा रहा है ऑब्जेक्ट वहाँ पर ऑब्जेक्ट के फोर्स के ऑपोजिट ऊपर की ओर। अब mg के ऑपोजिट ये इस समय भी है, फोर्स kx अभी भी mg के ऑपोजिट है, mg नीचे की ओर। वो इसकी नेचुरल लेंथ को x सेंटीमीटर कम करके यहाँ तक ले आया। रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे ही लेंथ ने चेंज करना शुरू किया, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया स्प्रिंग में। क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स कंप्रेशन के प्रोपोर्शनल है,
तो जैसे जैसे स्प्रिंग नीचे, ब्लॉक नीचे आ रहा है, स्प्रिंग को दबा रहा है, वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ रहा है और ये फोर्स mg को अपोज कर रहा है क्योंकि mg ही तो उसको नीचे दबा रहा है। इस फोर्स का टोटल काम होता है स्प्रिंग की लेंथ को ये चेंज नहीं होने देना चाहता। एंड एट सम पॉइंट दिस kx after increasing at some point of compression x, it balances the mg. So either it is extension or it is compression. Finally इक्वेशन क्या बनती है कि जब ब्लॉक रेस्ट पर आ जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स kx becomes equal to restoring force or spring force becomes equal to mg. यानी kx is mg here also, right? Now see this case, horizontal है spring and I start pulling the spring towards right. अभी भी वही होगा, restoring force किधर पैदा होगा? If I am changing the length of the spring, increasing the length of the spring, then restoring force will be always in that direction so that it can restore the length. ये change of length को oppose करेगा। अगर मैं खींच रही हूँ तो ये मेरे खींचने की opposite direction में पैदा होगा, value kx. And whenever the डिफॉर्मिंग फोर्स किसे कह रहे हैं? जो स्प्रिंग की लेंथ को बदल रही है। व्हेनेवर डिफॉर्मिंग फोर्स बिकम्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव्ड. सो दिस वाज स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स is directly proportional to extension or compression. Its expression is kx, where x is extension or compression and k is spring constant, right? Now the last force is force due to collision or force due to mutual interaction. केस लिया मैंने कि दो बॉल्स को मैंने इधर एक दूसरे की ओर मूव कराया, ठीक है, लुढ़का दिया। ये दोनों बॉल्स जब कोलाइड करेंगी तो ए बी को राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो रिएक्शन में बी ए को लेफ्ट डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। ये बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसकी फील अगर ना हो तो फोर्सेस किधर लग रहे हैं वो ही नहीं फील कर पाता है बच्चा। और जो फोर्स वेक्टर लगाया है आप उसके लगाने के एरोज देखो, बी पे किसका फोर्स है? ए का। ए का फोर्स बी पर, तो बी पर टेल है और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो पुश है। ए पर ये किसका फोर्स लगा हुआ है? बी का। लेकिन इसका एक दूसरा बड़ा अच्छा सा केस है, देखो इसको हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, करके देखते हैं इसको। ये दो ऑब्जेक्ट मैंने लिए, ठीक है, और मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं वैसे ही रख लूँ जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाया है, जिससे कि तुम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और मैंने इसमें से जो ये ऑब्जेक्ट नंबर, ये येलो जो था ऑब्जेक्ट, इसको मैंने फोर्स लगाना शुरू किया। अब क्योंकि मेरा ये स्लोप है तो ये नीचे की ओर आ रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल होता तो ये नीचे नहीं आता बेटा। तो मैंने फोर्स लगाया तो देखो ये किधर जा रहा है? राइट जा रहा है। अब तुम कहोगे मैम इसमें क्या बड़ी बात है? आप राइट की ओर पुश करोगे तो ब्लॉक राइट जाएंगे, हाँ ठीक है, लेकिन फोर्स तो मैंने इस पे लगाया ना, ये क्यों चला? तो तुम कहोगे मैम आपने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया एंड दिस ब्लॉक pushes this block,
तो बस यही बात तो मुझे समझानी थी। मैंने इस पे फोर्स लगाया, लेकिन चला ये भी, ये मेरे पुश की वजह से नहीं चला, ये इस ब्लॉक के पुश की वजह से चला। मतलब आ जाओ डायग्राम पर, फोकस करूं मैं पहले। आप देखो, मैंने पहले वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया, इस ब्लॉक ने इस ब्लू ब्लॉक को पुश किया। देखो ये एफ फोर्स किसका है पता है? बी पे जो फोर्स लगा है वो किसका है? ए का। पहले ए ने मेरे फोर्स की वजह से राइट डायरेक्शन में चलना चाहा, लेकिन राइट डायरेक्शन में बी रखा हुआ था, तो ए ने बी को जो फोर्स लगाया वो बी पे मैंने दिखाया है। देखो टेल बी की इस बाउंड्री पर है और एरो जिधर बी चलेगा, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है कि अगर ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी ए पे रिएक्ट करेगा, इक्वल फोर्स से करेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा। तो देखो मेरा फोर्स ए को चलाएगा, लेकिन बेटा ये फोर्स देखिए आप, ये फोर्स बी का है ए पर, तो ए का फोर्स एक्शन और बी का उल्टी डायरेक्शन में फोर्स रिएक्शन। अब खास बात पता है क्या है यहाँ पर? अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं। देखो, वन फोर्स विच आई वॉज एक्सर्टिंग एंड द सेकेंड फोर्स विच बी वॉज एक्सर्टिंग। अब मैं थोड़ा और डीप चली जाऊं, मैंने जो तुमको इतनी देर सिखाया कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए, कितने बच्चे बता सकते हैं? बोलो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए। दो फोर्स लग रहे हैं, कहो हाँ। कौन कौन से? माई फोर्स विच आई वॉज एक्सर्टिंग एंड द फोर्स ऑफ बी ऑन ए। क्या ये एक दूसरे के ऑपोजिट है? यस। अब अगर मैं पूछूं बड़ा कौन सा है तो कैसे बताओगे? कंफ्यूज हो रहे हो? फाइनली जो ए ब्लॉक था वो किधर चल रहा था? सोचो, फाइनली ए ब्लॉक किधर चल रहा था? राइट साइड में ना। तो कौन सा फोर्स ताकतवर है? ये वाला, which I can represent it as F dash से। The force I was exerting that is represented with symbol F dash। तो F और F dash में से कौन सा बड़ा है? बोलो F dash, क्योंकि ओवरऑल दोनों ब्लॉक्स किधर चल रहे थे? टूवर्ड्स राइट। तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि नेट फोर्स ऑन ए, तो तुम कहोगे कि फोर्स विच इज स्ट्रॉन्गर माइनस दैट फोर्स विच इज वीकर एंड विच इज ऑपोजिट टू द स्ट्रॉन्गर फोर्स, एफ डैश माइनस एफ। बेटा क्लियर हुई बात? इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि बी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो क्या कहोगे? सिर्फ एक। कौन सा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बी। तो विच फोर्स इज मेकिंग ए टू मूव? दिस एफ नेट इज मेकिंग ए to move, but which force is making B to move? बताओगे? But force of A on B is making B to move.
ये कॉन्सेप्ट्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं। बोर्ड में तो फिर भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उतने नहीं आएंगे, आते हैं पर उनका परसेंटेज उतना नहीं होता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स आर आल्सो देयर, but conceptual questions and numericals both need this analysis, and those who are appearing for NTSC, they have to analyze the things as I am teaching them, as I am explaining them, right? So now let me focus the camera on the notes. You have to go through the notes and you have to write the notes by yourself along with the diagram. You will not be getting these diagrams in books because this is experience of so many of years. Right? Now this part of the topic, tension. I think now the whole all the lines are visible. So tension, spring force, and this part. This is also very important, very important part. Resolving a vector quantity and then analyzing the forces when object is placed on a horizontal surface or inclined surface. The concept of रिजल्टेंट कॉन्सेप्ट आज दिया है तुम लोगों को, पर रिजल्टेंट फोर्स पर हम बात और भी करेंगे। जब फोर्सेस के कॉन्सेप्ट्स में तुमको समझा दूंगी और 3 लॉज के बारे में बात कर लूँगी, देन वी विल स्टार्ट विद द मोमेंट ऑफ फोर्स। दिस टॉपिक इज़ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स बेटा। मैकेनिक्स यूँ समझ लो कि फिज़िक्स का सबसे मुश्किल और घुमाने वाला पार्ट होता है। बहुत कॉन्सेप्ट्स, मशीन्स को देखो तुम, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स, उनका ABC यहीं से तो शुरू होता है। सो नाउ दिस इज़ फॉर today's class. Repeat the videos, go through the concepts again and again. Write your notes by yourself. In the next class, we will move to non-contact forces. Till then, all the best, beta.